सिगाची कंपनी इंतजामिया के साथ रेवंत रेड्डी मिली भगत कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम बीआरएस लीडर हरीश राव ने लगाया। कंपनी में मशीनरी की खराबी को लेकर मजदूरों ने बारहा शिकायत की, मगर इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। एक मजदूर की मौत के बाद उसके बेटे ने भी शिकायत दर्ज कराई, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरीश राव ने सवाल उठाया कि अब तक कंपनी इंतजामिया के खिलाफ केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अफराद में से किसी एक को भी गिरफ्तार न करना रेवंत रेड्डी हुकूमत की मिली भगत को साबित करता है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मजदूरों के जानों के साथ खेल रही है और सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर बीआरएस खामोश नहीं बैठेगी। मुतासिरा मजदूर ख़ानदानों को इंसाफ दिलाने तक बीआरएस की जिदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने इंतबाह दिया कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो रियासत गिर सतह पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, ఈ ఘటనలో చేసిన ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, ఇదేమో కంప్లైంట్. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, ఇది కంప్లైంట్. కంప్లైంట్ ఏమిచ్చారు? చనిపోయినటువంటి జగన్మోహన్ యొక్క కొడుకు యశ్వంత్ ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్. చనిపోయిన కార్మికుడు జగన్మోహన్ చనిపోతే ఆయన కొడుకు యశ్వంత్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. ఆ కంప్లైంట్ లో ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారంటే, ఈ సిగాచి కంపెనీలో పాతబడిన మెషినరీ ఉండడంతో ప్రమాదం సంభవిస్తుందని ఎన్నోసార్లు మా నాన్న మరియు ఇదే కంపెనీలో పనిచేయుచున్న వర్కర్లు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కు చెప్పడం జరిగింది. అయినా మేనేజ్మెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలని అదే పాతబడిన మెషినరీలతో పనిచేయించారు. ఇలాగా పనిచేస్తే చాలా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని మరియు తీవ్రమైన హాని కలిగే అవకాశం ఉన్నదని మా కుటుంబ సభ్యులకు నాన్న చెప్పుతూ చాలాసార్లు బాధపడేవాడు అని ఇంత స్పష్టంగా కంప్లైంట్ ఉంది. ఈ కంప్లైంట్ మీదనే ఎఫ్ఐఆర్ అయింది. ఇందులో యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం ఉంది. పాత మిషనరీతో పనిచేయడం వల్ల ఈ సంఘటన జరిగింది అంటే ఇంతవరకు యాజమాన్యం మీద కేసు పెట్టలే. ఇంతవరకు యాజమాన్యానికి సంబంధించి ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేసిండ్రా అంటే నేను అడుగుతున్నా, రేవంత్ రెడ్డి ఎవరిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? యాజమాన్యంతో ఎందుకు కుమ్మక్కైనావు నువ్వు? ఎందుకు యాజమాన్యం మీద కేసు పెట్టలే, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదు? కంప్లైంట్ లో స్పష్టంగా ఉంది. ఈ కంప్లైంట్ మీదనే ఎఫ్ఐఆర్ అయింది. యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్ల, పాత మిషనరీ పెట్టడం వల్ల, ఎన్నోసార్లు చెప్పినా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఈ బ్లాస్టింగ్ జరిగింది, దీంట్లో మా వాళ్ళు చనిపోయారని అంత స్పష్టంగా కంప్లైంట్ వస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు యాజమాన్యాన్ని కాపాడుతుంది? యాజమాన్యంతో ఉన్న లాలూచి ఏంది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు యాజమాన్యానికి సంబంధించిన వ్యక్తులను ఈ రోజు వరకు అరెస్ట్ చేయలేదు? దీనికి సమాధానం చెప్ప. रेवंत रेड्डी डार्क वेब से कुछ टूल्स हासिल करके अपने ही वुज़रा और अपोजिशन लीडरों के फोन टेप करवा रहे हैं, ऐसा इल्जाम बीआरएस लीडर आरएस परभयन कुमार ने आयद किया। परभयन कुमार ने मुतालबा किया कि इस मामले की एसआईटी खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए फौरी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि वुज़रा को भी एसआईटी दफ्तर में तलब करके उनके फोन्स की जांच करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी पर गैर कानूनी तौर पर फोन टेपिंग के इल्जामात संगीन हैं और इस पर मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। परभयन कुमार ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के अंदर ही अपने वुज़रा पर शक करते हुए उनकी जासूसी करा रहे हैं। अपोजिशन लीडरों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और दीगर मालूमात चोरी की जा रही है, ऐसा कहना है बीआरएस लीडर का। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने डार्क वेब के जरिए जासूसी के सॉफ्टवेयर खरीद कर उनका गैर कानूनी इस्तेमाल शुरू किया है। परभयन कुमार ने कहा कि ये मसला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अवामी आज़ादियों पर हमला है। बीआरएस लीडर ने आला हुक्काम और अदालतों से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर तहकीकात में शफाफियत नहीं बरती गई तो बीआरएस रियासत गिर एहतजाज करेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి విచ్చలవిడిగా ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తూ ఉన్నది. చివరికి వాళ్ళ క్యాబినెట్ మంత్రుల ఫోన్లు హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి అని కూడా సిట్ అధికారులకు నేను రాతపూర్వకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కంప్లైంట్ కూడా సిట్ అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను సౌత్ ఫస్ట్ పోస్టులో వచ్చినట్టుగా నేను ఆ ఎవిడెన్స్తో సహా సిట్ అధికారులకు ఈ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫోన్లు ట్యాపే కాదు, మరి డార్క్ వెబ్లో అత్యంత ఆధునిక అత్యంత ఖరీదైన సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ వాడుతూ తన ఓన్ మంత్రుల మొబైల్ ఫోన్లను
హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుల మొబైల్ ఫోన్లు కూడా హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. మిగతా బిజినెస్ మెన్ల మొబైల్ ఫోన్లు కూడా హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేది పూర్తిగా సౌత్ ఫస్ట్ పత్రిక రాసింది. దీని మీద కూడా పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఆ మంత్రులను మీరు సిట్ ఆఫీస్కు పిలిపించాలి. వాళ్ళ ఫోన్లు కూడా మీరు ఎగ్జామిన్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫోన్ల మీద కూడా ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫోన్లలోకి ఏ విధంగా మరి సాఫ్ట్వేర్ మాల్వేర్ పంపించిన విషయాల మీద కూడా పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా कांग्रेस एमएलए मिल रेड्डी रंगा रेड्डी की रहाइशगाह के सामने फार्मा सिटी मुतासरीन किसानों ने धरना दिया। किसानों ने मुतालबा किया कि इंतखाबात से कबल दी गई भूमि सीखरन जमीन जब्ती मनसूखी की जमानत को हुकूमत पूरा करे। मुतासरा किसानों ने कहा कि हुकूमत ने उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती हासिल करके वादे खिलाफ वर्जी की है। मिल रेड्डी रंगा रेड्डी के घर के सामने किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए अपने मुतालिबात रखे। किसानों का कहना है कि उनकी ज़मीनें वापस न की गईं तो वो जिदोजहद को शिद्दत देंगे। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने उन्हें धोखा दे कर ज़मीनें छीन ली हैं। फार्मा सिटी मंसूबे के नाम पर हज़ारों किसानों को उनके हक से महरूम कर दिया गया है। एहतजाज में शामिल किसानों ने कहा कि वो जब तक इंसाफ नहीं मिलता धरना जारी रखेंगे। किसान तंजीमों ने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर मुतालिबात पूरे न किए गए तो रियासत गिर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। पुलिस ने मिल रेड्डी रंगा रेड्डी के घर के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि एहतजाज पर काबू पाया जा सके। మనమేం దొంగతనం చేస్తలేమమ్మా, లంగతనం చేస్తలేము. కూర్చుందాము, శాంతి ఏది చేసినా శాంతియుతంగా అమ్మా. ఎవరు తిట్టకండి, ఏం చేయకండి. మనకు సార్ ఇచ్చిన హామీలే అడుగుతున్నాం. మనం ఏమంటున్నాం ఆ సార్ని? సార్ మనకు ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు హామీలు ఏమి ఇచ్చిన అవే అడుగుతున్నాము. మనం ఎవ్వరిని తిట్టకండి, ప్లీజ్ తిట్టకండి, మాటలు నడకండి. ఏదైనా శాంతియుతంగా అడుగుదాం. సార్ చెప్పిన ప్రకారమే నడుచుకుందాం. कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए कोना श्री शालिम गोड़ के भाई की हरासानी से नौजवान की खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुमार यादव नामी नौजवान गुज़िश्ता 8 सालों से कोना श्री शालिम गोड़ के भाई श्रीनिवास गोड़ के साथ काम कर रहा था। श्रीनिवास गोड़ माजी में कुतुबलिल्लापुर कांग्रेस पार्टी से एमपीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। श्रीनिवास गोड़ ने अपनी कंपनी सिम्माक सारुका कंक्रीट वर्क्स में 1 करोड़ रुपए की चोरी का झूठा इल्ज़ाम कुमार यादव पर आयद किया। कुमार यादव की जानिब से इल्ज़ामात को मुस्तरद करने के बावजूद श्रीनिवास गोड़ ने मुसलसल हरासानी का निशाना बनाया। श्रीनिवास गोड़ के आदमियों ने कुमार यादव की टाटा टागू कार और मोबाइल फ़ोन ज़बरदस्ती छीन लिए। हरासानी से दिलबर्दाश्ता हैकर कुमार यादव ने अली असुबा फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कुमार यादव के अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके बेटे की मौत के ज़िम्मेदार कांग्रेस के साबिक एमएलए श्री शालिम गोड़ के भाई हैं। कुमार यादव कोकटपली वेंकट रावनगर कॉलोनी में रहाइश पजीर थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अब हर गांव में एक वाइन शॉप शराब की दुकान कायम करने का फैसला किया है। रियासत में शराब की फरोख्त को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक्साइज महकमा को फौरी इक़दामात करने के अहकामात जारी किए हैं। आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र वाइन शॉप्स के लिए पेशगी नोटिफिकेशंस जारी करने की तैयारी हो रही है। अब तक सिर्फ बड़ी पंचायतों तक महदूद वाइन शॉप्स को हर गाँव तक तोसी देने का मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत ने एक्साइज महकमा को हिदायत दी है कि नई पॉलिसी में दीगर रियासतों के अफराद को भी लाइसेंस का मौका दिया जाए। मंदिर हलकों में कम फरोख्त वाली वाइन शॉप्स को गिराम सतह पर मुंतकिल
करने का फैसला किया गया है। 4 दुकानों के मौजूदा 2 साला लाइसेंस मुद्दत को 3 साल तक बढ़ाने और दरखास्त फीस को 3 लाख रुपए तक बढ़ाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इस अक़दाम से सरकारी आमदनी को दुगना करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। एक्साइज हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे भारी अहदाफ को पूरा करना मुमकिन नहीं है। हुक्काम का कहना है कि 24 घंटे शराब फरोख्त करने की इजाज़त मिले तभी ये हदफ हासिल किया जा सकता है। हैदराबाद ज़िला में व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज कराने की सहूलत का आगाज़। कलेक्टर हरिचंदना दसरी ने हैदराबाद ज़िला के लिए व्हाट्सएप पर मबनी शिकायत के इजाले का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। शहरी अब सरकारी दफातर जाए बगैर अपनी शिकायत व्हाट्सएप नंबर 7416687878 पर भेज सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत कुनिंदा को एक ग्रीवनेस ID, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR और SMS तस्दीक भेजी जाएगी। ये अक़दाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की डिजिटल गवर्नेंस मुहिम का हिस्सा है। इस निज़ाम का मकसद अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना और शहरियों और हुकूमत के दरमियान राब्ता को आसान बनाना है। कलेक्टर का कहना है कि इस सहूलत से शहरियों का कीमती वक्त बचेगा और शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन होगा। हुकूमत ने तमाम महकमों को इस सिस्टम के ज़रिए शिकायत के फौरी हल की हिदायत दी है। शहरी किसी भी सरकारी मसला शिकायत को आसानी से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। ये सहूलत हैदराबाद में बेहतर अवामी खिदमात की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। एप्पल कंपनी की जाली अशिया फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने एप्पल कॉरपोरेशन के कॉपीराइट नुमाइंदों के साथ मिलकर हैदराबाद में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने मोहम्मद शाहिद अली 48, इरफान अली 49 और संतोष राज पुरोहित 39 शामिल हैं, जो जाली एप्पल मसनूआत की खरीद और फरोख्त में मुलव्वस थे। ये अफराद एप्पल वॉच, एयरपोड्स, USB केबल्स, एडोप्टर्स और दीगर लवाजमात की नकली अशिया तैयार करके जाली एप्पल लोगो, MRP स्टिकर्स और सिक्योरिटी सील्स लगाकर बेच रहे थे। टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए कल 2761 जाली अशिया जब्त की, जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त शुदा सामान 28 एप्पल वॉचेस, 1145 एयरपोड्स, 52 USB केबल्स, 14 एडोप्टर्स, 4 मैगसेफ पावर बैंक्स और 260 एप्पल वॉच बॉक्स कवर्स शामिल हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए मरचौक पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान सारिफीन को धोखा देने के लिए अशिया को असली समझकर फरोख्त कर रहे थे। एप्पल कंपनी के कॉपीराइट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो जाली मसनूआत खरीदने से एहतियात करें। गदवाल में सरवीर तिजीशोर कत्ल केस में नए इंकिशाफात सामने आए हैं। तहक़ीक़ात में मालूम हुआ कि मुल्ज़िम तिरुमिला राव ने अपनी महबूबा ऐश्वर्या की स्कूटी में खुफिया GPS ट्रैकर नस्ब किया था। ऐश्वर्या और तिरुमिला राव के दरमियान गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात चल रहे थे, मगर ऐश्वर्या के दीगर अफराद के साथ करीबी ताल्लुकात पर तिरुमिला राव को शक हुआ। इसी शक की बुनियाद पर तिरुमिला राव ने ऐश्वर्या की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखने के लिए स्कूटी में GPS ट्रैकर फुट किया। पुलिस का कहना है कि तिरुमिला राव रोज़ाना ऐश्वर्या कहाँ जाती है और किस किस से मुलाकात करती है, इस पर खुफिया निगरानी कर रहा था। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस ने ये GPS डिवाइस करनोल में ऐश्वर्या के घर के सामने पार्क की गई स्कूटी से बरामद की। तिजीशोर के कत्ल की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस तफ्तीश को मज़ीद वुसअत दे रही है। मुल्ज़िम के इस हरकत से ताल्लुकात में बढ़ती बदगुमानी और कत्ल की साजिश के पहलू पर भी तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि इस वाक़या में मज़ीद अफराद के मुलव्वस होने के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदाकारा रम्या को रैप करके कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं अदाकार दर्शन के हामी, ऐसा इल्ज़ाम रम्या ने आयद किया है। रम्या ने ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ जल्द ही बंगलोर पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया है। याद रहे कि अदाकार दर्शन को रेणुका स्वामी नामी मद्दा के कत्ल केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रम्या ने कहा कि दर्शन के हामी उन्हें भी मुसलसल सोशल मीडिया पर हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर्शन के फैंस और रेणुका स्वामी के रवैये में कोई फ़र्क नहीं है। सोशल मीडिया पर दर्शन के फैंस रम्या को धमकियां देते हुए कह रहे हैं कि रेणुका स्वामी की जगह तुम्हें मरना चाहिए था। उन्होंने रम्या को रैप करके कत्ल करने जैसी नाज़िबा धमकियां भी दी हैं। अदाकारा रम्या ने कहा कि वो जल्द ही पुलिस से मुलाकात करके उन तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अपील की है कि वो इस तरह के नाज़िबा और धमकी आमेज़ मवाद पर सख्त एक्शन ले। रम्या ने
कहा कि वो इस हरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाकर दूसरी ख़वातीन के लिए मिसाल कायम करना चाहती है। नागौल स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए 25 साला नौजवान दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहा। नागौल स्टेडियम हैदराबाद में 27 जुलाई 2025 को 25 साला नौजवान गिंदिला राकेश दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। राकेश बैडमिंटन खेलते वक्त अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसके दोस्तों ने फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद राकेश को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी राकेश एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था और खेलों में दिलचस्पी रखता था। वाक़या के बाद राकेश के अहलखाना और दोस्त शदीद सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि राकेश की सेहत के हवाले से पहले कोई संगीन मसला नहीं था। नागौल स्टेडियम में खेल के दौरान अचानक मौत ने खिलाड़ियों और शहरियों में खौफ व हरास पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। माहिरीन सेहत ने नौजवानों में बढ़ते दिल के दौरों पर तशवीश का इजहार किया है। मड़क जिला में दोस्त की सालगिरह तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर पेश आया अलमनाक हादसा। 4 नौजवान दोस्त एक ईरंगा कार किराए पर लेकर सालगिरह तकरीब के लिए रवाना हुए थे। तकरीब में शराब नोशी के बाद वापसी के दौरान कार तेज रफ्तारी से चल रही थी। कार बेकाबू होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे खंभा टूटकर जमीन पर गिर गया। टुकर इतनी शदीद थी कि कार अलफॉल्ट कर तबाह हो गई। हादसे में 18 साला जशोनित की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। कार में सवार बाकी 3 नौजवानों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा में मुलव्वस तमाम नौजवानों की उम्रें 20 साल से कम हैं। तेज़ रफ्तारी और नशे की हालत को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। कड़पा में कमिश्नर बंगले में ताश के जुआ खेलते हुए सरकारी मुलाजमीन की अय्याशी का वाक़या मंजर आम पर आया है। इत्तलात के मुताबिक कमिश्नर बंगले में निगरानी की कमी का फ़ायदा उठाकर मुलाजमीन ने वहां डेरा डाल रखा है। आला हुक्काम की पुश्तपनाही की वजह से ही यह गैर कानूनी सरगर्मियां जारी है, ऐसा कहा जा रहा है। जुआ खेलने वालों में कमिश्नर मनोज रेड्डी का ड्राइवर और दीगर अमला भी शामिल है। बंगले में रोज़ाना शाम के वक्त ताश के जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। इलाका अवाम में इस वाक़या को लेकर शदीद नाराज़ी देखी जा रही है। मकामी अफराद का कहना है कि आला अफसरान की मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सरकारी बंगले में इस तरह के गैर कानूनी कामों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इस मामले पर अब तक किसी किस्म की महकमाना इंक्वायरी शुरू नहीं की गई है। अवाम ने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया है कि इन अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हिंदापुर में मुस्लिम खातून के साथ जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश का सनसनीखेज वाक़या सामने आया। टीडीपी के रुकन असेंबली नंदीमोरी बालाकृष्णा के हामियों पर खातून को नौकरी के बदले जिस्मानी ताल्लुकात के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम है। मुतासिरा खातून सरकारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत मुलाजमत कर रही थी, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि टीडीपी लीडरान इसे मुसलसल हरासा कर रहे हैं। इसने हिंदापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, मगर पुलिस ने शिकायत कबूल करने से इनकार कर दिया। मुतासिरा खातून ने रोते हुए सवाल किया कि अगर बालाकृष्णा के घर की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो खामोश रहते। खातून ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की और अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मामला मंजर आम पर आने के बाद मकामी अवाम और ख़वातीन तंजीमों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से गफलत और मुल्ज़िमान को सियासी तहफ़्फ़ुज़ देने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। मुतासिरा खातून ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। అందరికీ నమస్కారం। నేను శానిటేషన్ వర్కర్ హిందూపురంలో హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను. ఇలా చింటూ అనే వ్యక్తి నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. పోలీసులకు ఇంటి దగ్గరకు పంపించి అమర్ అనేవాడు, చింటూ అనే వ్యక్తి ఇద్దరు నాకు ఇక్కడ పని లేకుండా చేసినారు, ఇక్కడ ఇల్లు లేకుండా చేస్తున్నారు. అదేమని అడిగితే మళ్ళీ కంప్లైంట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే సీఏ గారు కూడా కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు. అందువల్ల నాకు చాలా ఇదిగా ఉంది. నాకు న్యాయం చేయండి సార్, కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. బాలకృష్ణ గారు నేను చెప్తున్నాను. నా బాధ ఎవరు చెప్పుకోలే, మాకు ఎవరు లేరు అండగా. నాకు చాలా హింసిస్తున్నారు సార్. నాకు ప్రాణహాని కూడా ఉంది. అందుకే సీఏ గారికి చెప్తే సీఏ గారు తీసుకోలేదు. అందుకే డిఎస్పీ మేడంకి నేను చెప్తున్నాను, మేడం మీరే నాకు అండగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఎవరు లేరు మేడం. నా కొడుకు, మా అమ్మ కూడా వికలాంగురాలు. దాన్ని చాలా హింసిస్తున్నారు హాస్పిటల్లో. పని ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ దగ్గర పడుకోవాలంటున్నారు మేడం. ఇది ఎక్కడ న్యాయమో అడిగితే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. మా హలీలాల్ మసీద్లోకి వచ్చి నేను మాట్లాడితే
వైఎస్ఆర్ తరపున వస్తున్నారని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ తరపున వీళ్ళ తరపున నేను రాలేదు మేడం. న్యాయం జరగాలని వచ్చినాను నేను. ఆయన న్యాయం చేయట్లేదు ఇక్కడ. మీరే నాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను బాలకృష్ణ గారు. మీ ఇంట్లో ఒక ఆడబిడ్డ ఇలా జరిగితే మీరు ఊరికే ఉంటారా? నా బాధ చాలా ఇదిగా ఉంది. నాకు ఈ తిండి కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మీరే నాకు న్యాయం చేయాలి ఎలాగైనా కానీ. ఇదే कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कायम कमीशन 29 जुलाई तक हुकूमत को हतमी रिपोर्ट पेश करने वाला है। हतमी रिपोर्ट पेश करने से कबल कानूनी निकात पर तफसीली जायजा लिया जा रहा है। जस्टिस चंद्र घोष की क़ियादत में कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट की बारीक बीनी से जांच कर रहा है। कमीशन की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट में पेश आए घपलों और बदनवानियों पर रोशनी डाले जाने की तवक्को है। हुकूमत ने कमीशन से कानूनी पहलुओं पर वाज़ेह और मुफस्सल सिफारिशात देने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में प्रोजेक्ट की तकनीकी खामियों और माली बेज़ाब्तगियों का भी जिक्र किया जाएगा। कमीशन के जायजे के बाद रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की जाएगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अवामी पैसों के गलत इस्तेमाल पर अपोजिशन जमातें मुसलसल सवाल उठा रही हैं। कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जस्टिस चंद्र घोष कमीशन ने अपनी तहकीकात को आखिरी मरहले में दाखिल करते हुए कानूनी माहिरीन से मशवरा किया है। नारायणपेट जिला के मारिकल मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक बाप ने अपनी 10 साला बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की का अरमाया नामी शख्स की 3 बेटियां मकथल की सरकारी हॉस्टल में जेर तालीम हैं, जिनमें छोटी बेटी हाल ही में कुत्ते के काटने की वजह से गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने आई थी। 25 तारीख को मां मजदूरी के लिए गई हुई थी और बाप मवेशियों के पास गया हुआ था। शाम को शराब के नशे में धत होकर घर आए कारमाया ने बेटी को अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। बेटी ने बाप के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, निना तेरे पीर पकड़ती हो, मगर दरिंदा सिफत बाप ने इसे नहीं बख्शा। बेटी की चीख और पुकार सुनकर मकामी अफराद ने बच्ची को खून में लथपथ हालत में बचाया। मां जब मजदूरी के बाद वापस आई तो बेटी की हालत देखकर इसे फौरी गांव के आरएमपी डॉक्टर के पास ले गई। हालत नाजुक होने पर मारिकल गवर्नमेंट अस्पताल और फिर महबूब नगर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। महबूब नगर अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद ही इलाज किया जाएगा। इतवार के दिन बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मफरूर बाप की तलाश शुरू कर दी है। कुंडापुर राव पार्टी केस में कई अहम इंकिशाफात सामने आए हैं। हर वीकएंड पर आंध्र प्रदेश से नौजवान लड़के लड़कियों को लाकर हैदराबाद में रियो पार्टियां मुनक्किद की जा रही थीं। रियो पार्टियों का इनेकाद करने वाले अशोक नायडू के पास से पुलिस ने मुनशियात, गांजा और कंडोम्स जब्त किए। अशोक नायडू मुनशियात के आदी नौजवान लड़कियों को ही निशाना बनाते हुए पार्टियों में शामिल करता था। अशोक नायडू EP 39SR0001 नंबर की फॉर्च्यूनर कार पर लोकसभा MP स्टिकर लगाकर घूमता हुआ पकड़ा गया। एक्साइज हुक्काम अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि अशोक ने MP स्टिकर कहां से हासिल किया। रियो पार्टियों में शामिल अफराद के मुनशियात टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अशोक नायडू के मुनशियात नेटवर्क के पीछे कई बासर अफराद का हाथ हो सकता है। अशोक नायडू के फ़ोन डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स की भी तफ्तीश की जा रही है ताकि मज़ीद मुल्ज़िमान का पता चल सके। एक्साइज हुक्काम ने कहा कि रियो पार्टियों के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर में एक बीवी ने 4 नौजवानों के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करने की साजिश रची। जीवाती नामी खातून ने अपने शौहर रामदास को मारने के लिए 4 नौजवानों के साथ मंसूबा बनाया। रामदास को बहाने से बोरमपेट ले जाकर नशे की हालत में बियर की बोतलों से हमला किया गया। नौजवानों ने रामदास को नीम मुर्दा हालत में छोड़कर समझा कि वो मर चुका है और वहां से फरार हो गए। शदीद जख्मी रामदास होश में आकर अपने भाई के घर पहुंचा और सारा वाकया बयान किया। रामदास ने बिच्छूपली पुलिस स्टेशन जाकर बीवी जीवाती और हमला आवर नौजवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। इब्तिदाई तफ्तीश में मियां बीवी के दरमियान घरेलू झगड़े की बात सामने आई है। जीवाती ने अपने शौहर से छुटकारा पाने के लिए कत्ल की साजिश की थी, ऐसा पुलिस को शुबा है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द ही गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 19 साला दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड विमेंस चेस चैंपियन का खिताब जीतकर तारीख रकम की है। दिव्या ने फाइनल में भारत की सीनियर खिलाड़ी कुनेरू हम्पी को शिकस्त दी। इस कामयाबी के साथ दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। वो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली चौथी भारतीय खातून शतरंज खिलाड़ी हैं। दिव्या की इस जीत से भारतीय शतरंज की दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। नौजवान उम्र में दिव्या की ये बड़ी कामयाबी मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अफजा मानी जा रही है। खेल के माहिरीन ने दिव्या की जहानत और हिकमत अमली की सिताइश की है।
पूरे मुख से दिव्या देशमुख को मुबारकबादें मौसूल हो रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर स्कूल में एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जहां एक सरकारी उस्ताद 11 की स्पेलिंग सही लिखने में नाकाम रहा। ये वाकया इस वक्त सामने आया जब मुआयना के दौरान अफसरान ने उस्ताद से स्पेलिंग लिखने को कहा। उस्ताद ने गलत स्पेलिंग लिखी, जिस पर अफसरान हैरान रह गए। मज़कूरा उस्ताद हर माह 70,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। अफसरान ने इस लापरवाही पर सख्त बेरहमी का इजहार किया। स्कूल के दीगर असातिज़ा और अमले से भी सवालात किए गए। महकमा तालीम ने इस वाकये की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्ताद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत शुरू से ही कहती आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कर रहे हैं तो पालगाम दहशतगर्द हमले पर भी बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पालगाम हमले में सिक्योरिटी खामियों का जिक्र किया था, इस पर भी तवज्जो देनी होगी। आज के इनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्द पालगाम हमले में मुलव्वस थे। ऐसी रिपोर्ट्स पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये सच है तो ये खुशआइंद है। उन्होंने कहा कि पालगाम हमले के बाद हमारी फोर्सेज उन दहशतगर्दों की तलाश में थीं। वजीर आला ने फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का सफाया जरूरी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में ऐसे हमले न हों, उसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात मजीद मजबूत किए जाएं। भारतीय लोकसभा में तकरीर करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये खुशआइंद बात है कि ऐवान इस अहम मसले पर संजीदा बहस के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने मुल्क के उन बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया जिन्होंने मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी फौज के हर सिपाही की कुर्बानी को पूरा मुल्क सलाम करता है। वजीर दिफा ने कहा कि भारतीय फौज हमेशा मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर फौज के बहादुरों और अफसरान की सिताइश की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी कौम को अपनी फौज पर फख्र है जो हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करती है। उन्होंने ऐवान में मौजूद तमाम अराकीन पार्लियामेंट से अपील की कि वो फौज के हौसले बुलंद करने के लिए यकजहती का मुजाहरा करें। वजीर दिफा ने कहा कि हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले हर सिपाही के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर उनके तय शुक्रगुजार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर के दौरान फौजी जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों को कौम की सबसे बड़ी ताकत करार दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की हर हुकूमत ने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा भाईचारा और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भी कई मरतबा पहल की गई। वजीर दिफा ने कहा कि भारत जंग नहीं चाहता बल्कि पुरम बकाए बाहमी का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की में हमसाया ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात का बड़ा किरदार होगा। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि सरहदों पर सिक्योरिटी को मजबूत रखते हुए भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने आलमी बरादरी से भी अपील की कि वो खित्ते में अमन कायम रखने में मुस्बत किरदार अदा करे। सदन के सभी दलों के मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन अध्यक्ष महोदय अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है।
इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों, या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने यह चाहा। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ।